Anyone? Small intestine. Small intestine, site of absorption of food. क्या सिर्फ small intestine के वहीं food absorb होता है, कहीं और होता है कि नहीं? हाँ sir. It other portions also food is absorbed, but the main site of absorption is small intestine. The digested food absorbed mainly in small intestine, and the intestine is provided with lymph vessel as well as blood capillaries. Okay. अगर मैं स्मॉल इंटेस्टाइन का एक पोर्शन का बात करूं तो एक स्मॉल इंटेस्टाइन का स्मॉल पोर्शन और द इनर वॉल ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन, it has finger-like projections like this. And these finger-like projections, each one is called villus. And plural is villi or villi बोला जाता है. And these are richly supplied with blood capillaries. आप यहाँ देख सकते हो each villus, they are supplied with what? Blood capillaries. जो red में है, ब्लू में है, दे आर ब्लड कैपिलरीज. ओके. एंड जो थोड़ा सा यहां पे आप देख सकते हो येलोइश टाइप है, ब्राउन येलो का कॉम्बिनेशन, दैट वन इज लिम्फ वेसल. दैट वन इज लिम्फ वेसल. ओके. टू टाइप्स ऑफ fluid that flow in our body for transportation of material from one part to another, one is blood, another is lymph. And दोनों का वेसल कहां पे है? Inside the villus. And the wall of the villus, if you look at this wall, it is thin wall. This is called, actually ये जो wall है, this wall is made up of epithelial cells. और आप देख सकते हो ये one cell thick है, one cell thick. So it is very thin wall through which easily digested food can be transferred where? To the blood circulatory system or lymphatic system. So the digested food absorbed mainly in small intestine, and the intestine is provided with lymph vessel as well as blood capillaries, water, minerals, vitamins, amino acid, glucose. Glucose is a monosaccharide. Monosaccharide मतलब सबसे छोटा यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का ये. So water, mineral, vitamin, amino acid and glucose are absorbed by blood capillaries, and fatty acids and glycerols are absorbed by lymph capillaries. So there are 6 components of food about which we discussed. वो 6 component में carbohydrate, protein, lipids, vitamins, minerals and water. इसमें से lipids का digestion होने से क्या बनता है? Fatty acid and glycerol. And that fatty acid and glycerol, यहाँ जो fatty acid and glycerol होगा, that will be absorbed by lymph vessel. तो वो कहाँ पे आ जाएगा? lymph vessel में. और लिम्फ में आने के बाद वो लिम्फेटिक सिस्टम से आपका बॉडी का अलग अलग टिश्यू में क्या होगा? स्टोर हो जाएगा इन द फॉर्म ऑफ फैट और लिपिड, एंड दैट विल बी यूटिलाइज्ड बाय योर बॉडी एज फ्यूचर रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी. जब फ्यूचर में जब आपका बॉडी में कार्बोहाइड्रेट का डेफिशिएंसी होगा ड्यू टू एनी रीजन, स्टारवेशन, और आपने बहुत देर तक फूड कंज्यूम नहीं किया, सो इन योर बॉडी दैट लिपिड विल बी यूटिलाइज्ड टू प्रोवाइड यू एनर्जी. तो ये फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल लिम्फ वेसल में एंटर होने के बाद बॉडी में स्टोर हो जाता है, तो आपको इमीडिएट एनर्जी प्रोवाइड नहीं करेगा. देन बाकी कंपोनेंट का क्या हुआ? कहां चला गया? ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम. एंड दैट ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम मींस व्हाट? ये सर्कुलेटरी सिस्टम में आना मतलब ब्लड का हेल्प से हार्ट तक पहुंच जाएगा. हार्ट विल पंप these components to the different parts of the body. Each and every cell of your body needs these components. For efficient absorption of food, the intestine has following peculiarities. तो ये भी एग्जाम में आता है कि how your intestine has been designed for maximum absorption of digested food. तो इसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? एक है इट इज लॉन्ग. लॉन्गर इंटेस्टाइन होने का क्या एडवांटेज है? फूड will take longer period of time to pass through the intestine. जितना ज्यादा टाइम फूड लेगा पास होने के लिए, उतना ज्यादा चांसेस क्या है? एब्जॉर्प्शन का. Then its epithelial lining is very thin, leading to rapid diffusion of substances, which I already told you. इसका जो lining है, outer covering, that is made up of epithelial cell. This epithelial lining is very thin, leading to what? Rapid diffusion of substances, rapid absorption of substances.
Then the surface area of the intestine is greatly increased due to the presence of finger-like projections called villi or villi and singular villus. ये villi क्या कहते हैं? Surface area बढ़ा दिया absorption का. It increases the surface area. अगर villi नहीं होता तो imagine करो आप, अगर यहाँ पे villi नहीं होता, then this is the small intestine, और अगर यहाँ villi नहीं होता तो area of absorption तो बहुत कम होता. अगर ये स्ट्रेट होता यहाँ पे तो एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन कम होता. बिकॉज ऑफ दिस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन surface area has been increased. Then villi are profusely supplied with blood capillaries and lymph vessels. एक और advantage of inside villus, inside villi, blood capillaries and lymph vessels, richly supplied with blood capillaries and lymph vessels, that helps in what? Efficient absorption. So have you understood how your intestine is designed for absorption of food? एक तो surface area ज्यादा है. Okay. Sir, हाँ. sir, are the villus present on both sides or just Yes, one? yes, yes. All sides actually. डायग्राम में तो 2D में दिखा रहा हूँ, राइट और लेफ्ट में दोनों में होगा, लेकिन ये पूरा इंटेस्टाइन का जो वॉल है उसके चारों तरफ होगा ही. Sir, tubular side. ट्यूबुलर, हाँ हाँ, ट्यूबुलर में, इनर सरफेस में, कंप्लीट इनर सरफेस में होगा. Okay, sir. Okay. So food is digested, food is absorbed where? Food is absorbed in the small intestine. अगर आपको पूछा जाए two functions of villi in your body, if I ask you, anyone, कौन आंसर देना चाहेगा? Sir, वैभव बोलो. sir, it increases the surface area. It increases the surface area of, so yes, surface area for absorption of digested food. और विलाई का मेन फंक्शन क्या है? विलाई हेल्प इन द व्हाट? एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड, तो बाय इंक्रीजिंग सरफेस एरिया. ओके, और क्या एडवांटेज है? Sir, it is rich in lymph vessels and the blood capillaries. It is richly supplied with क्या? Blood capillaries and lymph vessels, so that it helps in efficient absorption of digested food. Okay. Now egestion. फूड डाइजेस्ट हो चुका है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो गया, एब्जॉर्ब भी हो गया, उसके बाद क्या होता है? आफ्टर डाइजेशन एब्जॉर्प्शन, व्हाट इज द नेक्स्ट फेज, नेक्स्ट स्टेप ऑफ दिस न्यूट्रिशन? इट इज व्हाट? Excretion. नहीं. आफ्टर एब्जॉर्प्शन व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेज? Assimilation. एसिमिलेशन. यहाँ एसिमिलेशन के बारे में डायरेक्टली बोला हो नहीं, लेकिन एसिमिलेशन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. एसिमिलेशन मींस व्हाट इज द फंक्शन ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ द फूड दैट आर एब्जॉर्ब्ड. तो एब्जॉर्ब होगा ब्लड में, उनका क्या होगा? उनका सप्लाई होगा कहाँ पे? टू द सेल्स. सेल्स में जाने के बाद अगर मैं आपको पूछता हूँ कार्बोहाइड्रेट का क्या फंक्शन है? Energy provided. टू प्रोवाइड एनर्जी. इफ आई आस्क यू व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लिपिड इन योर बॉडी? What is the function of lipids? If I ask you, Vasu. Sir, it is stored for future use. Yes, it is stored in the body for future requirement of energy. If I ask you what is the function of protein? Sir, For it growth. helps in growth and repair of the body. Growth and repair. Helps in growth and development, growth and repair. फिर vitamins, minerals and water, इनको बोला जाता है regulatory component. They regulate various biochemical reactions. They regulate various biochemical reactions. तो जो फूड डाइजेस्ट नहीं हुआ, आपने तो ऐसा बहुत कंपोनेंट इंजेस्ट किया जो डाइजेस्ट नहीं भी होता है. फॉर एग्जांपल सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी. सो जो फूड डाइजेस्ट नहीं होगा वो कहाँ चला जाएगा? वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर हो जाएगा. कहाँ पे? लार्ज इंटेस्टाइन में. स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर हो गया लार्ज इंटेस्टाइन. ये लार्ज इंटेस्टाइन है. दीज आर द पार्ट्स ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन. ये पार्ट यहां से यहां तक, ये कंप्लीट इस यहां तक, द पार्ट इज कॉल्ड, द ट्यूब इज कॉल्ड कोलोन. क्या बोला जाता है इसको? कोलोन. असेंडिंग, ट्रांसवर्स एंड डिसेंडिंग कोलोन ऐसा होता है शेप में. और यहाँ पे एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है, दैट वन इज कॉल्ड रेक्टम. और रेक्टम में ओपनिंग होता है एक, एंड दैट ओपनिंग इज कॉल्ड व्हाट? एनस. ओके. तो फूड कहाँ पहुंच गया? फूड स्मॉल इंटेस्टाइन से जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन में. ओके, एंड वहां से फूड इजेस्ट होगा. The elimination of undigested remain of food from alimentary canal is called egestion, also called defecation. Excess of water is absorbed in large intestine.
ओके, फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन याद रखना, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। यहाँ मेनली वाटर एब्जॉर्ब होगा, फूड का वो सब कंपोनेंट प्रोटीन्स कार्बोहाइड्रेट एब्जॉर्ब नहीं होगा। The contents become semi-solid phases which pass out into rectum and is expelled through anus. Okay, तो water absorb होने के बाद जो undigested food बचेगा that gets converted into semi-solid form, semi-solid phases, and that will be stored temporarily in the rectum and will be released out of the body through anus. सो लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में आप जान लो थोड़ा डिटेल में। मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन, फंक्शन एग्जाम में बहुत पूछा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन का। मेजर फंक्शन ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब water and the remaining absorbable nutrients from the remaining undigested food matter before sending the indigestible matter to the rectum. तो मेनली वाटर एब्जॉर्ब करेगा और कुछ कुछ कंपोनेंट थोड़ा बहुत एब्जॉर्ब हो जाता है, बट मेनली इट एब्जॉर्ब्स व्हाट? वाटर. There are a number of beneficial bacteria that normally live in large intestine and play an important role in the breaking down of undigested sugar and fibers into fatty acids. तो कुछ बैक्टीरिया है, they also help in digestion. लेकिन डाइजेशन का बात यहाँ नहीं किया जाता in large intestine, जब main digestion is occurring where? In buccal cavity, in stomach and in intestine. तो आपको अगर पूछा जाए where mainly the digestion takes place in your alimentary canal, in which part? Small intestine. Small intestine. लार्ज इंटेस्टाइन के बारे में एक बात बताता हूँ। लार्ज इंटेस्टाइन का ये जो स्टार्टिंग पार्ट है, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है। दैट फिंगर लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? Appendix. And in human beings this appendix is non-functional. But in herbivorous animal, this appendix is performing an important function. What is that important function, if I ask? It digests Digestion of cellulose. It helps in digestion of cellulose. Okay, इनमें कुछ बैक्टीरिया होता है large intestine में, that bacteria produce an enzyme called cellulase, and that cellulase helps in what? Digestion. Okay. Have you understood? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Now, एक मसल के बारे में मैंने आपको बताया था जब मैंने स्टमक के बारे में डिस्कस किया था, that there is a muscle that controls the release of food from stomach to the small intestine. और वो मसल एक है वहां पे स्पिंक्टर मसल. Is any of the ring like muscle, वैसे अलग अलग पार्ट में भी होता है, बट स्टमक के जब डिस्कशन हुआ तो मैंने उस मसल के बारे में बोला था आपको. Any of the ring like muscle which can close or contract bodily passage or opening. तो कहीं भी अगर ऐसा पैसेज है, कहीं भी अगर ऐसा मसल है जो पैसेज को ब्लॉक या ओपन कर सकता है, that is called sphincter muscle. One of the most important human sphincter muscle is the sphincter pylori, around the opening into the small intestine that holds food in stomach until it is thoroughly mixed with gastric juice. तो आपको पता ही है फूड स्टमक में कितना टाइम तक अप्रोक्सीमेटली होगा? 6 hours. 6 hours. इतना टाइम तक फूड कैसे रहेगा उसमें? वहां पे स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन का जो पैसेज है, उस वहां पे एक मसल है, दैट मसल इज कॉल्ड स्फिंक्टर मसल, एंड दैट मसल कंट्रोल्स व्हाट? रिलीज ऑफ फूड फ्रॉम स्टमक. और वो तब तक रिलीज नहीं होने देगा जब तक फूड किसके साथ मिक्स नहीं हो जाए? Gastric juice. और वो finally it is converted into chyme, CHYME, और चाइम भी बोल सकते हैं. चाइम बनने के बाद और काइम बनने के बाद ये स्फिंक्टर मसल ओपन हो जाता है एंड फूड इज पास फ्रॉम स्टमक इनटू द इंटेस्टाइन. फिर आपका इंटेस्टाइन या आपका एलिमेंट्री कैनल अगर पूरा स्ट्रक्चर देखो तो बहुत ऐसा जगह जहां एलिमेंट्री कैनल इज वेरी मच कॉइल्ड, इतना ज्यादा कॉइल्ड है कि फूड जो हम लोग कंज्यूम करें उसको तो फंस जाना चाहिए था, कहीं पे अटक जाना चाहिए. स्मॉल इंटेस्टाइन का जो आप वो कॉइल देखोगे तो ऐसा लगेगा आपको, बट देयर इज अ काइंड ऑफ मूवमेंट. ओके, एक तरह का कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन मूवमेंट पूरा हम लोग का एलिमेंट्री कैनल में होते रहता है.
This movement is called peristalsis. Peristalsis are a series of muscle contractions that occur in our digestive tract, which helps in easy passage of food through the alimentary canal. Have you understood? आपका Yes, sir. आपका जो esophagus है वहां पे उधर भी is a kind of what muscular movement is there, and that helps in passage of food. आपका alimentary canal में, small intestine में, large intestine में, this kind of movement is there. वो term क्या उस movement के लिए? What term is used? Peristalsis. 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 Okay, ये term स्कूल में पूछा जाएगा आपको. And next, another topic here, and this is called dental caries. Also called, इसके लिए एक और term क्या है, किसी को पता है? Tooth decay. Tooth decay. Tooth decay. Dental caries or tooth decay is gradual softening of enamel and dentine. ये हार्ड कवरिंग होते हैं आपका टीथ के ऊपर. आप देखो ये एनेमल सबसे ऊपर हार्ड कवर, उसके बाद डेंटाइन, ओके, क्राउन पोर्शन में. टूथ एनेमल इज द हार्डेस्ट एंड द मोस्ट हाईली मिनरलाइज्ड सब्सटेंस इन ह्यूमन बॉडी. तो आप सोचो बचपन से टीथ आपका पूरा लाइफ साथ दे सकता है अगर आप प्रॉपर्ली टीथ को मैनेज करके रखो, मतलब क्लीन करके रखो. ठीक है. One student is entering, समरजीत सिंह ओबरॉय. किसका स्कूल का है? So faculty. Faculty. It is caused when food particles stuck to the teeth. Okay, tooth decay कब होगा? फूड पार्टिकल तो टीथ के ऊपर रहेगा ही, बिकॉज आप तो खाना तो बक्कल कैविटी माउथ का इन्वॉल्वमेंट है उसमें. बैक्टीरिया फाइंड सुटेबल मीडियम फॉर ग्रोथ. तो वो फूड पार्टिकल्स जब स्टिक करके रहेगा तो बैक्टीरिया को चांस मिलेगा ग्रोथ होने के लिए. एंड बैक्टीरियल सेल्स एंड फूड पार्टिकल्स स्टक टू द टीथ एंड फॉर्म डेंटल प्लग. दोनों क्या करेंगे, फूड पार्टिकल और बैक्टीरिया मिलके आपका टीथ के ऊपर एक तरह का कवर बनाते जाएंगे, एंड दैट इज कॉल्ड व्हाट? डेंटल प्लग. एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया रिमूव मिनरल्स फ्रॉम द टूथ एनेमल. तो यहाँ बैक्टीरिया और फूड पार्टिकल मिलके डेंटल प्लग बना चुका है और धीरे धीरे उसमें एसिड रिलीज होगा बिकॉज ऑफ द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, एंड दैट एसिड विल डिसॉल्व व्हाट? टूथ एनेमल. आपका टीथ का एनेमल धीरे धीरे वियर एंड टियर होते रहेगा, वो डिसॉल्व हो जाएगा. किसमें? एसिड में. प्रॉपर ब्रशिंग ऑफ टीथ रिमूव्स द प्लग्स and stops the bacteria from producing acid. If plugs are not removed, severe inflammation and infection may occur. तो ये डेंटल प्लग अगर रिमूव नहीं हुआ, आप अगर प्रॉपर ब्रशिंग नहीं करते हो टीथ का, स्पेशली कौन सा टाइम में आपको टीथ का ब्रशिंग इंपॉर्टेंट होता है? Night. आफ्टर डिनर अगर आप ब्रश कर रहे हो सोने से जस्ट पहले, तो वो सबसे बेस्ट है. ठीक है. तो वहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया को चांस मिलता है इफ फूड पार्टिकल्स रिमेन स्टक टू योर टीथ. फिर एक और डिस्कशन है. सर ये स्टार्टिंग का पॉइंट समझा नहीं सर. ए पॉइंट से जो आप समझा. पॉइंट ए क्या? 30 का ए, दिस वन. हाँ सर, इसके बाद समझ में नहीं सर. आप छोटा सा ब्रीफ में समझा देंगे. समझा देता हूं मैं. टूथ डीके होता है कैसे, उसका कॉज यहाँ डिस्क्राइब किया हुआ है. इट इज कॉज्ड व्हेन फूड पार्टिकल्स स्टक टू द टीथ. ठीक है. फूड पार्टिकल स्टक टू द टीथ, वो तो होगा ही, आप खाना खाओगे तो फूड पार्टिकल में रिमेन स्टक टू द टीथ. तो क्या होगा? बैक्टीरिया फाइंड इट सुटेबल फॉर ग्रोथ. तो फूड पार्टिकल जहां अवेलेबल होगा, आपका माउथ में बैक्टीरिया ऐसे रहता ही है, एंड दैट बैक्टीरिया और ग्रो करेगा बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ फूड पार्टिकल्स. बैक्टीरियल सेल्स एंड फूड पार्टिकल्स दोनों मिलके क्या करेंगे, आपके टीथ के ऊपर एक लेयर बनाते जाएंगे, और वो लेयर को हम लोग बोलेंगे डेंटल प्लग बन रहा है. क्या बन रहा है? डेंटल प्लग. ओके, प्लग बोला जाता है वैसे इसको. एंड एसिड्स प्रोड्यूस्ड बाय बैक्टीरिया रिमूव मिनरल्स फ्रॉम द टूथ एनेमल टू मेक देम
सॉफ्ट। तो जब बैक्टीरिया डेंटल प्लग अगर बन चुका है तो वहां बैक्टीरिया भी होगा, और वो बैक्टीरिया धीरे धीरे आपका टीथ का एनिमल को डिस्ट्रॉय करते जाएगा, सॉफ्ट करते जाएगा। So proper brushing of the teeth removes the plugs and stops bacteria from producing acid. ठीक है। और अगर बहुत ज्यादा दिन तक डेंटल प्लग रह गया, आप ब्रश ही नहीं करते ठीक से, तो क्या होगा? इन्फेक्शन हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन, आपका गम स्वेलिंग, पेन, ये सब प्रॉब्लम रहेगा। नेक्स्ट जो पार्ट है वो इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको पूछूं कि हम लोगों का इंटेस्टाइन और हर्बीवोरस का इंटेस्टाइन में किसका इंटेस्टाइन लॉन्गर होता है, कोई आइडिया है? Herbivores. Herbivore. हर्बीवोरस। कार्निवोरस का इंटेस्टाइन लॉन्गर नहीं होता, कंपैरेटिवली लेंथ में छोटा होता है। The length of the small intestine differs in various animals depending on the food they eat. Herbivorous eating grass need longer small intestine to allow cellulose to be digested. Meat is easier to digest, hence carnivores like tigers have shorter small intestine. आया समझ में? Herbivorous animals have longer intestine than that of carnivorous animal. This is because their diet is grass and plants made up of fibers and cellulose, which are hard to digest. As a result, herbivorous animals need longer digestive tract to digest their food completely. और कार्निवोरस के बारे में ऑलरेडी पता है हम लोग, कार्निवोरस मेनली डिपेंड करता है मीट के ऊपर, और मीट जो है इजी टू डाइजेस्ट कंपेयर टू ग्रास। सो कार्निवोरस ईट अ स्मॉलर अमाउंट ऑफ फूड कंपेयर टू हर्बिवोरस, खाना भी कम खाते हैं, ठीक है, कार्निवोरस। And it is in the form of high energy molecules which are relatively easy to digest compared to plant materials that herbivores eat, which contain cellulose. Therefore, carnivores have a smaller intestine. Have you understood? Yes, sir. Okay. Yes. Yes, sir.